Did you join Microsoft on campus या फिर आपने off campus separately apply करा था and from there you went through? So Qualcomm was the very first company that came on campus for full-time roles, and I sat for that company. So उस टाइम फिर मतलब जो on campus Microsoft का प्रोसेस था वो वहाँ पे पॉज कर दिया गया या फिर वो वहाँ पे कंप्लीट हुआ? Like what happened to that one? LinkedIn पे एक रिक्रूटर ने एक दिन मुझे रीच आउट किया कि माइक्रोसॉफ्ट की एंगेज की ओपनिंग है, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। तो अगर मैं टॉप 3 या 4 टॉपिक्स आपसे पूछूं जो आपको लगे कि मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रहे आपके इस प्रोसेस में, और मतलब आपने जो ऑन कैंपस भी प्रोसेस दिए, मैंने डीएसए शीट कर रखी थी एंड डायरेक्टली डीएसए शीट से उठा करके मेरे को क्वेश्चन आ गया। सो एनी थिंग्स एनी टिप्स दैट यू केप्ट इन माइंड एंड व्हाट इज द स्ट्रेटजी कि तुम ये 450 ऑड क्वेश्चंस सॉल्व कर पाई थी? तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि इस राउंड के बाद मेरा हो ही जाएगा सिलेक्शन। So guys, before moving forward, there is a very important information that I would like to give you. So recently we wrapped our Elite 1.0 front-end development course, and now we have launched our Elite 2.0 advanced front-end development course. This is a bigger and a better front-end development course that you need. This course doesn't need any particular prerequisite, and we are going to take you from the very beginner level to the advanced level of front-end engineering. We have actually included projects like your own Replit clone, Wix website maker clone, right? Uber clone, and a lot of similar projects. We are going to make your own PubSub library based LLD driven projects, and we are going to make sure that you learn important front-end design patterns as well. I'm going to list down all the projects and all the important design patterns here. This is the only course that you need if you are aiming for SD1 or SD2 or SD3 kind of roles, because we are going to take everything to the very advanced level in front-end engineering. We are going to learn a lot of optimizations, and we are going to see technologies like Next.js, Redux, Zustand, TypeScript, React, and of course, the latest version of React. This particular course is going to make sure that you have ample amount of projects that you can add in your resume. We are going to make approximately 20 plus projects with different variety of complexities, engineering problems, and of course, there will be a lot of discussion around the core concepts of frontend. So what are you waiting for? Check out the course link in the description below, and you can use the coupon code mentioned in the description section to get maximum discount possible. See you guys in the cohort, and let's get back to the video. Hello everyone, I am Sanket Singh, and today we have a very special guest with us. So we have Shumbul from Microsoft only, who is going to join us today for a very cool and nice conversation. I'll give you a brief about Shumbul. So Shumbul works as a software engineer L60 at Microsoft, and we will be talking a lot of things around what were the specific things जो उनके Microsoft के interview process में उनसे पूछी गई. How is she feeling like at Microsoft? What is the tech stack she works on, and lot more. So कुछ interesting insights के ऊपर हम लोग बात करेंगे. So without any further delay, let's just start and let's welcome Shumbul on the channel. Hey Shumbul, hello, welcome to our channel, and first of all, thanks for joining us for the podcast. Thanks a lot, Sanket, for inviting me, and I'm very excited for this podcast. Let us start. Cool, cool. If you can just quickly introduce, आप अगर अपना एक quick introduction दे पाओ, that should be nice for our viewers. Okay, so I'm Sumbul Arifa and I'm currently working at Microsoft as a software engineer, and मैं Air Force background से belong करती हूँ. मेरे father Indian Air Force से retired है, and I did my schooling from KV, and then I did college at NIT Karnataka, and then मैंने Microsoft join कर ली as a fresher. So अब मुझे Microsoft में 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं. So this is a bit about myself. Got it. So, so you were part of NIT Karnataka. So I believe it's a tier one college, right? Yeah. I'm assuming. So there must be a lot of on-campus companies and everything. So did you join Microsoft on campus या फिर आपने off campus separately apply करा था and from there you went through? तो येस, ऑन कैंपस बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती थी, बट मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस क्रैक की थी, और ऑन कैंपस मेरे पास ऑलरेडी एक ऑफर था, एंड माइक्रोसॉफ्ट Okay. ऑन कैंपस भी मैंने अप्लाई किया था फॉर इंटर्नशिप ट्वाइस और थ्राइस एक्चुअली, एंड आई गॉट रिजेक्टेड देयर. Okay. तो ऑन कैंपस जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉलकम से मुझे ऑफर आया था, तो दिस इज द सेम कंपनी दैट आई इंटर्न आफ्टर माई थर्ड ईयर. तो दिस इज Okay. अबाउट माई माइक्रोसॉफ्ट. Got it. So Qualcomm is like, I guess, mainly very intended towards hardware, right? So what was your work at Qualcomm? What was the tech stack, and what team were you part of for Qualcomm internship? ठीक है, तो जब मैं कॉलकम की बात करती हूँ तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने हार्डवेयर रोल में किया होगा इंटर्नशिप, बट ऐसा नहीं है. आई वाज
इन सॉफ्टवेयर रोल एंड अगर आप टीम की बात करो तो आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट जिसमें काइंड ऑफ इंटरनेट का फेलियर वगैरह सब डिटेक्ट होता था एंड फेलियर इम्प्रूव होता था, यानी कि फेलियर के चांसेस कम हो, तो काइंड ऑफ उस एरिया में था मेरा एंड इट वाज टोटली सॉफ्टवेयर एंड काफ़ी अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा. सो इट वाज नॉट लाइक एक प्रोजेक्ट मुझे मिला है और उस प्रोजेक्ट पे मुझे काम करना है. इट वाज मोर ऑफ लाइक कि एज अ फुल टाइम डेवलपर कोई कैसे काम करता है, तो बिट्स बाय बिट्स मेरे को Got it. टास्क मिलते थे, तो मेरे को बहुत सारे टास्क पे काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली. बट ओवरऑल दैट वाज द प्रोडक्ट दैट आई वाज वर्किंग एट. So what was the tech stack like at Qualcomm? मतलब डे टू डे वर्क में जो आपको जो भी टिकट्स वगैरह असाइन होती थी उसमें जो मेजर टेक्नोलॉजी जिस पे आप काम करते थे वो क्या था? कैन यू शेयर सम लाइट ऑन दैट? ओके, सो मेजरली मेरा काम पाइथन पे था. सो आई विल से पाइथन फॉर दैट एंड टेक स्टैक के अलावा एक और चीज़ जो मैटर करती है इंटर्नशिप में, जो कि मैंने देखा है कि आपको एक टाइमलाइन प्रोवाइड करनी होती है एंड देन उस टाइमलाइन पे आपको काम करना पड़ता है. सो प्रेजेंटेशन भी बहुत फ्रीक्वेंटली होती थी हमारी, क्योंकि इंटर्नशिप Okay. में प्रेजेंटेशन जो आप देते हो ना, उसी के बेसिस पे फिर आपका पीपीओ डिसाइड होता है, यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर, कि आपको फुल टाइम वो ऑफर मिलेगा it. या फिर नहीं. Got it. Got it. Makes sense. And then you like finally joined Microsoft as a full-time engineer, right? So Microsoft का interview process कैसा था? Like step by step कितने interviews हुए? What was the focus? क्योंकि as a fresher Microsoft के interviews और as a senior engineer Microsoft के interviews में फर्क हो सकता है. So what was your interview experience with Microsoft like? ओके, सो आई विल गिव अ वेरी डिटेल्ड आंसर टू दैट. ठीक है, तो मैंने कॉलकम, मैंने जैसे कि आपको बताया मेरे हाथ में कॉलकम का ऑफर था. तो हमारे कॉलेज में जैसे ही हम थर्ड ईयर में गए वैसे ही कंपनी स्टार्ट हो गई आने के लिए फॉर फुल टाइम इंटर्नशिप रोल्स. सो कॉलकम वॉज अ वेरी फर्स्ट कंपनी दैट केम ऑन कैंपस फॉर फुल टाइम रोल्स एंड आई सैट फॉर दैट कंपनी. एंड देन हमारे इंटरव्यूज हुए एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे थे एंड डीएसए एंड सब्जेक्ट रिलेटेड मेनली एंड सीएस के कोर सब्जेक्ट्स भी काफ़ी की रोल थे एंड रेज्यूमे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे. सो कॉलकम में मेरा एक बार जब ऑफर आ गया इंटर्नशिप के लिए, देन आई वाज ब्लॉक फॉर फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ एनी अदर कंपनी. सो दिस आई Okay. गॉट इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम कॉलकम. एंड देन आफ्टर द थर्ड ईयर आई डिड इंटर्नशिप विद कॉलकम एंड जैसे हम लोगों ने फोर्थ ईयर में एंटर किया, यानी कि सेवेंथ सेमेस्टर में, तो हमारी कॉलेज में ऑन कैंपस फुल टाइम के लिए कंपनी आना स्टार्ट हो गई प्लेसमेंट्स के लिए. तो ऑन Got it. कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए थे. तो जब तक कॉलकम का ऑफर नहीं आया था तब तक मेरे को अलाउड था कि मैं फुल टाइम रोल्स के लिए बैठूं एंड ऑन कैंपस कंपनी क्रैक कर सकूं. बट एज आई वाज इन द मिडल ऑफ इंटरव्यू राउंड्स एट माइक्रोसॉफ्ट, तो मेरा कॉलकम से ऑफर आ गया एंड देन मैंने कॉलकम से ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. Got it. Got it. So उस टाइम फिर मतलब जो ऑन कैंपस माइक्रोसॉफ्ट का प्रोसेस था वो वहाँ पे पॉज कर दिया गया या फिर वो वहाँ पे कंप्लीट हुआ? लाइक व्हाट हैपेंड टू दैट वन? तो तुरंत ही पॉज कर दिया गया क्योंकि मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. तो ये रूल्स थे कॉलेज के प्लेसमेंट्स के कि अगर आपके हाथ में ऑलरेडी एक ऑफर है तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना है, राइट. तो जब मैंने Got it. कॉलकम्स का पीपीओ एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मेरे जितने भी माइक्रोसॉफ्ट में या फिर और कहीं भी नाम आया है, मेरे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो उन सभी कंपनी से मेरे को क्या बोलते हैं, मेरा नाम हटा दिया. देन मैंने काफ़ी सोचा था एक्चुअली कि मैं ऑफर एक्सेप्ट करूँ, पीपीओ एक्सेप्ट करूँ या फिर मैं कंटिन्यू करूँ. तो फिर मैंने डिसाइड किया टू बी ऑन द सेफ साइड, मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हूँ एंड ऑफ कैंपस तो हमेशा मेरे पास ऑप्शन रहेगा ही. सो कॉलकम भी बहुत अच्छा ऑप्शन था, दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर इट एंड मैंने फिर ऑफ कैंपस स्टार्ट कर दिया. देन ऑफ कैंपस मैंने तैयारी की, 6 मंथ की मैंने तैयारी की थी कि मैं टोटली ऑफ कैंपस के लिए प्रिपेयर हो जाऊँ, क्योंकि ऑन कैंपस कॉम्पिटिशन थोड़ा लाइट रहता है. ऑफ कैंपस यू आर कम्पीटिंग विद द होल लाइक वाइडर ऑडियंस. ऑन कैंपस में तो सिर्फ कॉलेज के बच्चे हैं एंड इसीलिए रेज्यूमे सिलेक्शन ही बहुत डिफिकल्ट होता है ऑफ कैंपस में. Yes. तो इसलिए मैंने अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनाई और अपने प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से किए. अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छे से बनाई, वहाँ पे मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट कर दी एंड लिंक्डइन पे ही एक रिक्रूटर ने एक दिन मुझे रीच आउट किया कि माइक्रोसॉफ्ट की एंगेज की ओपनिंग है, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम. सो आई सेड येस एंड देन एंगेज का मैंने प्रोग्राम जो है वो अटेंड किया एंड एंगेज के थ्रू मुझे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर आया. So what is Microsoft Engage? If you can like in a short like tell us what happens in Engage, why is there, what is the final outcome of the overall program, what is it all about?
ओके, सो बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं हायर करने के। तो Mhm. दिस इज वन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोसेसेस। तो बाकी प्रोसेस में तो आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड होता है, एंड देन मे बी नॉन टेक्निकल राउंड होगा, एंड देन आपको ऑफर मिल जाएगा। बट माइक्रोसॉफ्ट Got एंगेज it. इज अबाउट अ प्रोजेक्ट ऑल्सो। सो मेन थिंग रहती है एंगेज में मेंटरशिप प्रोजेक्ट। तो कुछ मेंटर्स Okay. असाइन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट में जो फुल टाइम काम कर रहे होते हैं, एंड वो आपका प्रोजेक्ट पूरा मॉनिटर करते हैं एंड वो आपको मेंटर करते हैं। सो यू आर द मेंटी हियर एंड दे आर द मेंटर्स। तो आपका सबसे Okay. पहला राउंड तो ये होता है कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। तो जब रिक्रूटर ने Okay. मुझे रीच आउट किया था, शी आस्क्ड फॉर माय रेज्यूमे एंड आस्क्ड मी टू अप्लाई ऑन द पोर्टल। तो मैंने पोर्टल पे अप्लाई किया फ्रॉम द लिंक दैट शी सेंड टू मी। उसके बाद फिर मेरे को ऑनलाइन टेस्ट राउंड का लिंक आ गया जब मेरा रेज्यूमे सेलेक्ट हो गया वहाँ पे। तो ऑनलाइन Okay. टेस्ट राउंड फिर मैंने दिया जो कि 1.5 आवर्स का हुआ था, एंड मीडियम हार्ड लेवल क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें डीएसए के, एंड क्योंकि मैंने कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट कर लिया तो करती रहती थी मैं, तो थोड़ी प्रैक्टिस थी मेरी और मैंने ऑफ कैंपस तैयारी भी अच्छे से की थी, इसलिए आई कुड डू देम। बट जो सेकेंड क्वेश्चन था उसमें मेरे सारे टेस्ट केसेस पास नहीं हो पाए थे। कुछ Okay. बहुत कुछ में टीएलई आ रहा था, आई रिमेंबर। सो कुछ केसेस में टीएलई आ रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ लोग होंगे जिन्होंने दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे, तो दे विल फॉर श्योर बी बेटर देन मी, तो शायद मैं इसी राउंड में रिजेक्ट हो जाऊं। बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ एंड मैं नेक्स्ट राउंड में गई। फिर नेक्स्ट राउंड इज द कोर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंगेज मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि ऑलमोस्ट हर साल होता है। सो मेरे टाइम से ये प्रोग्राम फुल टाइम रोल्स के लिए भी आने लगा। इससे पहले मेरे सीनियर्स के लिए ये सिर्फ इंटर्न्स के लिए होता था, एंड आई डेंट इवन नो अबाउट दिस ओपनिंग। सो थैंक्स टू लिंक्डइन जहाँ पे मेरे को पता चला इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, नहीं तो मैंने वो पक्का मिस कर चुका होता। तो फिर हमारा स्टार्ट Got हुआ it. माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोजेक्ट, जो कि 28 डेज का होता है। तो सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें ये मिली थी कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी ऐसा बिल्ड करो जो कि उनको कोलैबोरेट करके उनके स्टडीज़ में काइंड ऑफ बेनिफिशियल हो सके। तो मैंने एक फुल एंड टू एंड कोलैबोरेटिव स्टडी पोर्टल बना दिया, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं, अपना टू डू लिस्ट बना सकते हैं। सेम वेबसाइट Got पे it. स्टूडेंट जा करके कुछ गूगल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, बुक सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे मैंने फीचर्स ऐड कर दिए, एंड आई थिंक दैट वाज अ प्लस पॉइंट कि वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ। तो वो प्रोजेक्ट मैंने काफ़ी अच्छे से डॉक्यूमेंट कर रखा है अपने गिटहब प्रोफाइल पे भी। उसका नाम है कोलैबोरेटिव स्टडी पोर्टल, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो। सो डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छे से किया था, एंड फीचर्स भी बहुत सारे मैंने ऐड किए थे, एंड उसको एंड टू एंड मैंने डिप्लॉय भी किया एजोर पे। सो आई थिंक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि इस राउंड के बाद मेरा हो ही जाएगा सिलेक्शन, एंड आई वॉज टोटली राइट, क्योंकि मेरा हो गया था इस राउंड के बाद। एंड इस राउंड के बाद फिर नेक्स्ट राउंड थे मेरे टेक्निकल इंटरव्यूज़। तो लोगों के 3 से 4 टेक्निकल इंटरव्यूज़ हुए, तो मेरे 3 टेक्निकल इंटरव्यूज़ हुए थे। इनिशियली Okay. ये ओवर 2 डेज डिसाइडेड था कि 2 दिन में सारे टेक्निकल राउंड्स हो जाएंगे, बट आई थिंक ड्यू टू बैंडविड्थ ऑफ इंटरव्यूअर्स ये मेरा जो फर्स्ट राउंड था वो फर्स्ट डे में हो गया, बट जो मेरे सेकेंड एंड थर्ड राउंड थे वो एक वीक आगे शिफ्ट हो गए थे। तो इंटरव्यूज़ फिर हमारे हुए, एंड फर्स्ट राउंड तो मेरा काफ़ी बढ़िया गया, एंड सेकेंड राउंड भी काफ़ी बढ़िया गया। तो मैंने डीएसए शीट कर रखी थी, एंड डायरेक्टली डीएसए शीट से उठा करके मेरे को क्वेश्चन आ गया। सो एक क्वेश्चन ऐसा आया, तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड, बट मैंने अपनी एक्साइटमेंट उतनी शो नहीं करी। दैट जस्ट आई कैन से लक फैक्टर ने बहुत काम किया वहाँ पे। फिर लेवल अगर हम बोले तो मीडियम हार्ड लेवल था, बट मैंने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करे थे। मैंने लीड कोड में काफ़ी प्रैक्टिस करी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 मंथ्स तक मैंने प्रेपरेशन करी थी। तो इन 6 मंथ्स में मैंने अराउंड 450 प्लस क्वेश्चंस किए थे, एंड उनमें से 420 क्वेश्चंस तो मैंने गिटहब पे डॉक्यूमेंट करके रखे हैं, तो वो भी आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगा। एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एवरीडे नाम की रेपो में है वो। तो हर रोज़ मैं जो भी मेरा प्रोग्रेस रहता था ड्यूरिंग दैट 6 मंथ, मैं वहाँ पे जा करके पुश करती थी गिटहब पे। सो दैट ऑल्सो केप्ट मी Very मोटिवेटेड। nice.
हाँ, या नाइस। सो फिर मेरे इंटरव्यू राउंड्स हुए 3 से 4 जो कि मैंने आपको बताया एंड अगर हम टेक्निकल इंटरव्यूज़ की डिटेल में जाएँ, इट स्टार्टेड विथ योर रिज़्यूमे। तो रिज़्यूमे में आपने जो कुछ भी लिखा है, इवन बहुत छोटी से छोटी चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि मैंने स्केटिंग लिखा था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कब करी थी, कब सीखी, अभी भी आप करते हो, ये सब। तो बहुत छोटी चीज़ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एंड प्रोजेक्ट्स तो आपको पूरे रटे होने चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको रेज़्यूमे का कोना-कोना पता होना चाहिए अपने रेज़्यूमे का एंड देन रेज़्यूमे डिस्कस करने के बाद फिर सब्जेक्ट्स उनके कुछ कोर सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि ऊप्स आपसे पूछा जा सकता है, ओएस या फिर डीबीएमएस भी पूछा जा सकता है, सीएन भी पूछा जा सकता है। तो मेरे केस में मैंने रेज़्यूमे में ही रिलेवेंट सब्जेक्ट्स ऐड कर रखे थे एंड उन्हीं सब्जेक्ट्स में से मेरे से क्वेश्चन पूछा एंड देन डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जो कि आई वुड से मीडियम टू हार्ड लेवल के थे क्वेश्चंस एंड उन क्वेश्चंस को फिर मैंने एंड टू एंड किया। मतलब सबसे पहले मैंने अप्रोच डिस्कस की, देन टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड देन उसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन मुझे मिला। समटाइम्स इट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन इन सम इंटरव्यू बट दिस वाज द ओवरऑल इंटरव्यू एंड लास्ट में इंटरव्यूअर आस्क कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चंस हैं, तो यूजुअली तब मेरे पास क्वेश्चंस रेडी रहते थे and I think even if you are sitting for an interview, you should have a question ready for the interviewer as well. So kind of वो बहुत आपका enthusiasm भी दिखाता है और बहुत positive role play करता है. And then ये interviews देने के बाद मेरा फिर offer आ गया after 2 months. गॉट इट। हाँ, मतलब ये वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है कि जनरली इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट कि तुम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछो, तुम कंपनी कल्चर से लेकर उस इंटरव्यूअर का जो भी काम है, जो भी वो टीम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो किस टीम में काम करते हैं, उससे रिलेटेड इफ यू कैन आस्क समथिंग, देन इट गिव्स अ नाइस इंप्रेशन कि मतलब यू आर आल्सो लिसनिंग टू देम प्रॉपर्ली एंड लाइक यू आर आल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस एंड यू आल्सो वांट टू नो हाउ द वर्क इज ऑल टुगेदर देयर। तो अच्छा, अगर मतलब इस पूरे प्रोसेस में इफ वी कैन सी, तो मतलब आफ्टर द प्रोजेक्ट यू वर हैविंग 3 odd technical rounds and then post these technical rounds you were through. So अगर मैं तुम्हें टॉप 3 टॉपिक्स, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, क्योंकि जो मुझे आपके डिस्कशन से समझ में आया मोस्टली जो टेक राउंड्स वाले टॉपिक थे वो डीएसए के ही थे, तो अगर मैं टॉप 3 या 4 टॉपिक्स आपसे पूछूं जो आपको लगे कि मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रहे आपके इस प्रोसेस में, और मतलब आपने जो ऑन कैंपस भी प्रोसेस दिए उसमें अगर आपको जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स लगे, मे बी वो कोई डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, वो कोई एल्गोरिथम हो सकता है, वो आप बता दो। टॉप 3 भी बता सकते हो आप, टॉप 5 भी बता सकते हो इफ यू हैव इट दैट ऑन टॉप ऑफ योर माइंड। इट विल एक्चुअली हेल्प द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि मतलब एक एवरेज ट्रेंड के हिसाब से what are some of the things that gets very frequently asked, so if you can throw some light there. ओके, सो जनरली टेक इंटरव्यूज में मिक्स्ड रहता है कि बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे उस क्वेश्चंस में, बट मेरे टॉप 3-4 रहेंगे ग्राफ्स, डीपी, ट्रीज एंड लिंक लिस्ट। ये 4 मेरे टॉप रहेंगे। Got it. So like अगर मैं पर टॉपिक के हिसाब से सोचूं, मतलब आपने जैसा कि आपने 450 odd क्वेश्चंस बनाए थे एंड 2022 में मतलब लाइक पीपल वर ऑलरेडी अवेयर बट स्टिल नॉट लॉट अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली फॉलो, तो मतलब पर टॉपिक के हिसाब से लाइक ऑन एन एवरेज हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व, क्या आप पर टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन करते थे? जैसे जो भी शीट्स टेक्निकली अवेलेबल है वो टॉपिक बाय टॉपिक सेग्रीगेटेड है, तो डू यू यूज टू फॉलो दैट प्रोसेस, या आप रैंडमली लाइक सीक्वेंशियली मतलब सीक्वेंशियली क्वेश्चन पिक कर रहे थे या रैंडम सिलेक्शन से पिक कर? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू एक्चुअली मूव टुवर्ड्स दीस क्वेश्चंस कि मतलब आप यू आर एबल टू सॉल्व 450 ऑड क्वेश्चन, मतलब दैट्स अ गुड बिग नंबर टू एक्चुअली अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स दैट आर अवेलेबल इन लीडकोड। तो कैसे मतलब अप्रोच कैसे करा 6 मंथ्स भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं ऑन एन एवरेज के हिसाब से बताऊं तो काफी जल्दी आपने वो चीज कवर कर ली। सो एनी थिंग्स, एनी टिप्स दैट यू केप्ट इन माइंड एंड व्हाट इज द स्ट्रेटजी कि तुम ये 450 ऑड क्वेश्चंस सॉल्व कर पाई थी? ठीक है, तो इसका भी मैं थोड़ा डिटेल में आंसर देती हूँ। तो जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी, वैसे मैंने 11th एंड 12th में भी सीएस ले रखी थी, बट इतना फोकस ओके, नहीं था सीएस में। एंड देन फर्स्ट ईयर में हमारी सी लैंग्वेज थी एंड बस सी लैंग्वेज ही थी। एंड सेकेंड ईयर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में हमारा डीएसए एक सब्जेक्ट था। फिर तब मैंने स्टार्ट कर दिया था डीएसए का कोर सब्जेक्ट, कोर समझने में। तो जेनीज लेक्चर और अब्दुल बारी सर इनके ओके, और तुषार रॉय इनके लेक्चर्स में देखती थी एंड वहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट कर दिया था। तो डीएसए तो मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, बट एकदम वो कंसिस्टेंट वाला वो नहीं था मेरे केस में। एंड फिर मेरे को पता चला कि डीएसए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लब्स वगैरह जो थे कॉलेज में वो भी डीएसए बेस्ड सिलेक्शन करते थे। मुझे तो लग रहा था कि किसी ने भी डीएसए नहीं कर रखी है, बट टू माय सरप्राइज बहुत सारे लोग छुप छुप के डीएसए कर रहे थे। एंड मेरा उस
वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि डीएसए राउंड में मैं क्लब्स में नहीं एंटर कर पाई, बट लेटर ऑन आई जॉइंड सम नॉन टेक्निकल क्लब्स एंड उससे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला. बट इफ़ यू आर इन कॉलेज, जितनी जल्दी हो सके आप डीएसए स्टार्ट कर दो एंड ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ एनी क्लब एंड ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन डीएसए. ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट. बट मेरे केस में मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था. जो मेरे सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर था, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर, तब मैंने स्टार्ट किया था डीएसए. तो मेरी उससे बेसिक डीएसए से इंटर्नशिप लग गई थी. बट जो मेरा मेन डीएसए का फेज था वो था फाइनल ईयर में, जो कि मैंने आपको बताया कि 6 मंथ्स में मैंने प्रिपरेशन करी. तो उससे पहले मैं बहुत ही कंफ्यूज रहती थी. मैं सारे प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करती थी एंड बहुत फ्रीक्वेंटली प्लेटफॉर्म स्विच करती थी. मेरे को कोड फोर्सेस भी करना है, मेरे को लीड कोड भी करना है, मेरे को इंटरव्यू बिट भी करना है. तो मैं प्लेटफॉर्म बहुत फ्रीक्वेंटली स्विच करती थी. बट फिर मैंने स्टार्ट किया एकदम स्क्रैच से. मैंने हैकर रैंक 30 डेज ऑफ कोड से स्टार्ट किया था. तो सबसे पहले मैंने लैंग्वेज के बेसिक्स एंड जो फंडामेंटल्स हैं वो सीख लिए. उसके बाद फिर मैं आगे लीड कोड पे. तो लीड कोड में मैंने सबसे पहले तो टॉपिक्स पिक किए. तो मैं टॉपिक वाइज गई एंड देन फिर मैंने बेसिक टू एडवांस टॉपिक स्टार्ट किए. एंड उसमें भी जैसे कि सबसे बेसिक टॉपिक होता है अरेज, तो मैंने अरेज से स्टार्ट किया. एंड अरेज में भी मैं जाके क्वेश्चन सॉर्ट कर देती थी. सबसे पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस पिक किए, देन मीडियम, देन हार्ड. तो एक बार इजी में कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद ही मैं मीडियम पे जंप करती थी एंड देन मीडियम में कॉन्फिडेंस आ गया तो हार्ड एंड देन फिर मैं टॉपिक स्विच करती थी. तो अरेज के बाद फिर मैंने किया लिंक लिस्ट, देन स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, डीपी, रिकर्शन, डीएसए, पूरा ऐसे करके मैंने कवर कर लिया. एंड पैरेलली मैंने कॉन्टेस्ट वगैरह भी दिए थे. तो मिक्स क्वेश्चंस भी मैं करती थी. बट सबसे मेन मेरा रहता था कि मैं टॉपिक वाइज करूँगी एंड उसमें भी मैं लेवल वाइज करूँगी. तो एक एक करके मेरे लेवल अप होते गए. मेरे को एक एक करके डीएसए में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता गया. एंड अगर आप वो क्वेश्चंस की लिस्ट देखोगे 420, तो वो भी लेवल वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉर्टेड मिलेगी. सो आई थिंक दैट आंसर्स. गॉट इट. तो मतलब आई बिलीव, क्या तुम्हें लगता है कि मतलब बिकॉज यू हैड अ पीपीओ फ्रॉम कॉलकॉम, तो उससे काफी एक पॉजिटिव दिमाग पे इम्पैक्ट रहता था कि मतलब 6 मंथ तक आप कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा बर्डन के बिना 420 450 ऑड क्वेश्चंस कर पाए. डू यू थिंक दैट एक्चुअली मेड सम डिफरेंस कि बिकॉज यू हैड एन ऑफर एंड यू वर हैविंग अ पीपीओ फ्रॉम कॉलकॉम, सो यू आर डेफिनेटली वेरी मच सॉर्टेड कि मतलब व्हाटएवर हैपेंस आई एम डेफिनेटली एटलीस्ट गोइंग कॉलकॉम और बेटर. तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ता था टू हैव एटलीस्ट वन ऑफर इन हैंड? Okay, yeah, that is a very good question to ask. That was that decision which I made to accept Qualcomm's PPO and to bear from any other on-campus interview was because of mental stability only. क्योंकि worst case में मेरे हाथ में कोई भी ऑफर नहीं रहता, तो दिमाग पे एक अलग ही लेवल का प्रेशर बना रहता कि अब तो क्रैक करना ही है. बट यहाँ पे आई वॉज वेरी लाइक आई हैड अ बैक कि कॉलकम का तो ऑफर है ही, तो कहीं नहीं लगी तो कॉलकम का ऑफर है ही, बट लेट मी ट्राई माई बेस्ट. सो येस, दैट हेल्प मी अलॉट एंड सो आई ट्राई टू कीप इट सेफ. मेक सेंस. सो आई बिलीव मतलब ये पूरा इंटरव्यू प्रोसेस की जर्नी काफ़ी यूजफुल होगी काफ़ी लोगों के लिए. एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि नाउ बिकॉज यू वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट, मतलब व्हाट्स द टेक स्टैक दैट यू आर इन्वॉल्व विद? आर यू लाइक mainly focused on back end part, front end part, or you handle full stack, or you handle some DevOps part? What is the role looking like, and are you enjoying it or not? Yeah, I'm definitely enjoying it a lot and especially Copilot के आने के बाद तो things are getting very exciting क्योंकि हर एक product में Copilot integrate हो रहा है and I personally like it a lot. Like मेरा तो day to day Copilot पे काम होता ही है कि मेरे को वो यूज़ करना है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं एंड काफ़ी प्रोडक्टिविटी भी आती है उससे. एंड टेक स्टैक की बात करें तो बहुत सारे टेक स्टैक हैं जिस पे मैं काम करती हूँ. एंड मैंने जब से माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया है, मेरे को मौका मिला है कि मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम करने का. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. एंड टेक स्टैक में सबसे ज़्यादा मैंने काम किया रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट पे, सी शार्प पे, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल पे एंड इसके अलावा थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग, पावर बीआई, इन सब पे भी मेरे को काम करने का मौका मिला है. तो इट्स नॉट लाइक जस्ट बैक एंड या फिर जस्ट फ्रंट एंड. तो मैंने बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक एंड इवन डिज़ाइनिंग एंड डेटा पे भी काम किया हुआ है एंड कोपायलट पे भी चल रहा है. Got it. So just because you said React with TypeScript and everything, तो एक quick question, मतलब what type of a person you are, like more of a JavaScript oriented person or you love TypeScript more?
आई यूज्ड टू लव जावास्क्रिप्ट, मैंने जावास्क्रिप्ट पे ही काम किया था, एंड टाइपस्क्रिप्ट इज समथिंग दैट आई अडैप्टेड आफ्टर कमिंग टू माइक्रोसॉफ्ट, एंड इवन इन सब में मेरा बिल्कुल ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट में आने के बाद मेरे को थोड़ा टाइम लगा था, टाइम मिला था कि तुम सीख लो। सो देयर वाज अ लर्निंग पीरियड इनिशियली, एंड उसमें मैंने मिनी प्रोजेक्ट्स बना करके वो टेक स्टैक जो थे वो अडाप्ट कर लिए, एंड देन आई आफ्टर अडाप्टिंग द टेक स्टैक मैंने स्मॉल टास्क से स्टार्ट किया, एंड देन फिर मैंने वो मैं यूज टू हो गई उन टेक स्टैक से। सो इट But स्टार्टेड what do you विथ love more? Like जावास्क्रिप्ट बट you still love JavaScript more, or like now your go-to जावास्क्रिप्ट stack would be with TypeScript? या Okay, जावास्क्रिप्ट you're still more into JavaScript. या That makes sense. That makes sense. So yeah, like I believe those were a couple of things that I wanted to ask. Main agenda मतलब आपसे discussion करने का यही था कि like people are able to understand that what are more ways to actually get into Microsoft. मतलब आपका Microsoft Engage वाला process काफी different है जो मैंने बाकी लोगों से सुना है, because your process included some project building part also, some online coding test part also, some technical interview aspects also. So काफी holistic और wholesome process रहा overall, I या believe. एंड And वन मोर थिंग I'm आई really वांटेड टू ऐड कि अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हो, देन देयर इज आल्सो अ सिस्टम डिजाइन राउंड। आई एम श्योर आपका भी हुआ ही होगा सिस्टम yeah, डिजाइन राउंड। सो बी प्रिपेयर्ड इफ यू आर अप्लाइंग एज एन एक्सपीरियंस रोल फॉर एन एक्सपीरियंस रोल। yeah, makes sense. Yeah, I believe even L60 रोल पे भी there are a few friends of mine जिन्होंने डायरेक्टली L60 रोल के लिए इंटरव्यू दिया था, उनसे भी एक डिजाइन राउंड पूछा गया था। उसकी डिफिकल्टी वेरी कर सकती है कि L60 पे डिफिकल्टी क्या होगी, L61 पे थोड़ी ज्यादा होगी, 62 पे और ज्यादा होगी, एंड सो ऑन। तो डिजाइन राउंड पे पीपल डेफिनेटली शुड एक्सपेक्ट, अगर वो एटलीस्ट एक साल भी एक्सपीरियंस है, तो मैंने देखा है कि L60 वाले इंटरव्यूज के लिए माइक्रोसॉफ्ट कैन एक्चुअली आस्क डिजाइन क्वेश्चंस आल्सो। और ये सारी चीजें मतलब लोगों को लीड कोड पास्ट ईयर एक्सपीरियंस से भी काफी इजीली एनालाइज करने को मिल जाएंगी। मैं तो जनरली लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि डू चेक द पास्ट एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। But I believe with your discussion and with your context, a lot of people got an idea that what to expect if they are going through the engage process, and like what they can expect with their work at Microsoft. So thank you, Shumbul, thank you for taking out some time from your schedule and coming on the channel. I really had fun having this conversation with you. I hope you had a good time as well. Yeah, I totally had a great time, and thanks for inviting me. या श्योर श्योर। तो मैं शुमुल की जो भी गिटहब के लिंक्स थे जिनके बारे में उन्होंने बताया कि दे हैव she has like sorted all the 420 450 odd questions on the GitHub repo. I'll put that. I'll also put the GitHub link for the projects that she mentioned, and you can also check out her channel. She also makes some really nice content, and for your tech career enhancement and for your career progress, you can definitely follow her as well. She's making some really good content and adding a lot of value to a lot of people. So do check out her channel. I'll put the links in the description section below. That being said, let's wrap this particular video. हम लोग मिलेंगे next set of videos में. Till then, take care, guys. Bye bye. I'm Sanket Singh, signing off.